بندے کے من میں تو انقلاب برپا ہو ہی جاتا ہے، چہرے کے اوپر بھی وہ اثرات طاری ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب محبت کی نظر سے دیکھا، فرعون کی بیوی کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس لیے ہم جب بھی اللہ والوں کو دیکھیں تو محبت کے ساتھ دیکھا کریں، نفرت اور عداوت کے ساتھ نہ دیکھا کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں دو چیزوں سے نظریں ہٹانے کا حکم دیا ہے، ایک چیز پہ نظریں جمانے کا حکم دیا ہے۔ توجہ کریں، ایک تو ہمیں لوگوں کے مال سے نظریں ہٹانے کا حکم دیا ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ہم نے جو لوگوں کو مال پیسہ دیا ہوا ہے، آپ آنکھیں کھول کھول کے ان کے مال پیسے کی طرف نہ دیکھیں، ان کی کاریں اور ان کی کوٹھیاں یہ آپ کو اپنی طرف متوجہ نہ کریں۔ زہرت الحیات الدنیا، یہ چند روزہ زندگی کی خوشنمائی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگوں کے مال کی طرف نہ دیکھیں اور لوگوں کے جمال کی طرف نہ دیکھیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مؤمنین سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، لوگوں کے جمال کے جلوے نہ دیکھا کریں، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اچھا، کسی کے مال کی طرف بھی نہ دیکھیں، جمال کی طرف بھی نہ دیکھیں، اللہ تو ہم کس طرف دیکھا کریں؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم۔ اپنے آپ کو نتھی کر لو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، رب کی رضا کی متلاشی ہوتے ہیں، اور آپ کی آنکھیں ان کے چہرے سے ہٹے نہ ہوں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی چہرے ان سے ہٹے نہ۔ اللہ والوں کو دیکھیں اور ٹک ٹکی باندھ کے دیکھیں، محبت سے دیکھیں، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ والوں کے ساتھ تعلق یہ ایمان کی حفاظت کا باعث ہے۔ چنانچہ مشہور مفسر محقق عالم دین امام راضی رحمۃ اللہ علیہ معقولات کے بڑے ماہر اور مفسر بھی تھے، بڑے اعلیٰ پائے کے تفسیر لکھی ہے، تفسیر کبیر، آج بھی علماء کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، 32 جلدوں میں ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی توحید کے بارے میں ایک کتاب لکھی، اور ان کو اپنی کتاب پر بڑا ناز تھا۔ وہ اپنی کتاب کو لاجواب سمجھتے تھے کہ میری کتاب لاجواب ہے۔ اور اللہ کی شان، جب وفات کا وقت قریب آیا تو شیطان سامنے آیا اور شیطان نے کہا امام راضی کیا حال ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ الحمدللہ، توحید کی دولت ساتھ لے کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل کیا ہے؟ امام راضی نے ایک دلیل پیش کر دی، شیطان نے وہ دلیل توڑ دی۔ امام راضی نے اگلی دلیل پیش کر دی، شیطان نے وہ بھی توڑ دی۔ امام راضی نے اگلی دلیل، چونکہ ان کے پاس تو پوری کتاب تھی، ایک ایک دلیل پیش کرتے گئے، شیطان ایک ایک دلیل کو توڑتا گیا اور ختم کرتا گیا، یہاں تک کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لاجواب ہو گئے۔ شیطان نے اس وقت کہا کہ امام راضی، توحید کے بارے میں تیرا یہ حال ہے کہ ثابت کر نہ سکا، تیرے باقی اعتقادات کا کیا بنے گا؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ شش و پن کی حالت میں تھے کہ میں اس شیطان لعین کو کیا جواب دوں؟ کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس، لیکن ان کا تعلق تھا ایک اللہ والے کے ساتھ۔ حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سینکڑوں میل دور بیٹھے اپنی خانقاہ میں وضو فرما رہے تھے، اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل اور قدرت کے ساتھ ان پر معاملہ منکشف کر دیا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو آخری لمحات میں شیطان نے لاجواب کر دیا ہے۔ تب وہ وہیں سے بیٹھ کے جلال میں آ گئے، جلال میں آ کے فرمایا امام راضی یوں کیوں نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بلا دلیل کے مانتا ہوں؟ یہ الفاظ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں پہنچا دیے۔ انہوں نے اس وقت فرمایا دفع ہو جا لعین، میں اللہ کی توحید کو بلا دلیل کے مانتا ہوں، یہ فرمایا اور روح پرواز کر گئے۔ آخری لمحات میں ایمان کی بقا اور حفاظت میں جو کردار ادا کیا تھا وہ ان کا اپنے شیخ کے ساتھ تعلق نے کردار ادا کیا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی بقا اور حفاظت کے لیے کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑیں، اور جن کا تعلق جڑا ہوا ہے وہ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں،
क्योंकि अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक़ की बदौलत बंदा कुफर के गड़े के किनारे पे पहुंचा होता है, अल्लाह ताला पीछे हटा लेता है और निकाल लेता है। हमारे हज़रत जी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि बैरून मुल्क एक जगह पे मैंने बयान किया। बयान के बाद मैं मस्जिद में बैठा हुआ था कि मस्जिद के दरवाजे के सामने से एक नौजवान गुजर रहा था। नौजवान के हाथ में शराब की बोतल थी, शराब पी रहा था और जा रहा था, लेकिन उसने दरवाजे के अंदर से झांक के देखा, देखते ही वहीं पे खड़ा हो गया। थोड़ी देर हमारी तरफ देखता रहा, फिर वहीं पे उसने शराब की बोतल फेंक दी और सीधा मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया और मेरे पास पहुंच के मुझे कहने लगा कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, आपकी तरह बनना चाहता हूं। मैंने कहा आपको मेरी पगड़ी अच्छी लगी, मेरी आसा अच्छी लगी, मेरी दाढ़ी अच्छी लगी, क्या चीज आपको अच्छी लगी? नौजवान कह रहा था कि मुझे आपके चेहरे पे एक नूर नजर आ रहा है, उस नूर को हासिल करना चाहता हूं। फरमाते हैं मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, कदम बढ़ाइए, आपको ये नूर मिल जाएगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लें कि मैं हूं क्या चीज, क्या मैं आपकी तरह बन सकता हूं? फिर उसने जवान ने कहा कि मैं आपको बताऊं कि मैं क्या हूं। मैं एक मुसलमान हूं, लेकिन सिर्फ नाम का मुसलमान हूं, बाकी मुझे कुछ पता नहीं है कि इस्लाम किया है और दीन किया है। मैं अपने मुल्क से यहाँ पे आया हूँ, यहाँ एक कंपनी में जनरल मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। हज़ारों डॉलर मेरी तनख्वाह है और मेरी शादी नहीं हो चुकी। ये मेरी भरपूर जवानी, खूबसूरत कद काट आप देख रहे हैं, मेरी शादी नहीं हो चुकी और मुझे शादी की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं रोज़ाना किसी नए घर में मेहमान होता हूँ, मुझे रोजाना नए घरों से दावत मिल रही होती है। मैंने कभी शादी की जरूरत ही महसूस नहीं की और मेरी पूरी जिंदगी का खुलासा यह है कि मैं सब कुछ खाता हूं, सब कुछ करता हूं, सब कुछ खाता हूं, सब कुछ करता हूं। ये मेरी पूरी जिंदगी का खुलासा है। अब आप बताएं कि मैं आपकी तरह बन सकता हूं? हजरत फरमाते, मैंने कहा हाँ, आप इन हालात के बावजूद भी मेरी तरह बन सकते हैं। चुनांचे उसी वक्त उसने वुजू कर लिया, बेसन पे वुजू कर लिया, हाथ मुंह धो लिए, मेरे पास आया, मैंने उसको कलिमात पढ़ाए, बैत की। कलिमात पढ़ाने के बाद मैंने उनको कुछ मामूलात बताए और जो मकामी दोस्त अहबाब थे उनके नाम और टेलीफोन नंबर और पते बता दिए। मैं वहाँ से वापस आया। फरमाते हैं कि ठीक 6 महीने बाद उस नौजवान का मेरे पास ख़त आया और वो फरमाते हैं कि वो ख़त आज भी मेरे पास महफूज है। उसने लिखा था कि हज़रत आपसे ताल्लुक़ जोड़ने के बाद मैं 5 वक़्त नमाज बाजमात तकबीर ऊला के साथ अदा करता हूँ, कभी कभार तहज्जुद की तौफीक भी मिल जाती है। फिर वो नौजवान खुद कहता है कि हजरत ये तो कोई इतनी हैरानगी वाली बात नहीं है कि बंदा 5 वक़्त नमाज बाजमात पढ़े और कभी कभार तहज्जुद भी पढ़ ले, ये तो इतनी हैरानगी वाली बात नहीं है। ज्यादा हैरानगी वाली बात यह है कि मैं सोचता हूं कि मैं गुनाहों के समुंदर में रहते हुए गुनाहों से किस तरह अपने आप को बचा रहा हूं। गुनाहों के समुंदर में रहते हुए मैं अपने आप को किस तरह बचा रहा हूं, मैं इस बात पे हैरान हूं। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूं समुंदर उछाला देता है। ये मुरीदीन जब सुबह शाम गुनाहों के मंसूबे बना रहे होते हैं, लेकिन ये अल्लाह वाले होते हैं जब नीम शबी की दुआओं में अपने मुरीदीन को याद कर करके उनको गुनाहों से बचाने में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने मिन्नत समाजत कर रहे होते हैं। तो अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक हमारे ईमान की बचाव का जरिया। दूसरा ये कि हम सुन्नतों की इत्तिबा करें। इत्तिबा सुन्नत की बदौलत बंदे का ईमान महफूज हो जाता है। वजह यह है कि जब कोई बंदा सुन्नतों के मुत्तबे होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब बन जाता है। हम नमाज पढ़ते हैं, हम अल्लाह के मुहिब होते हैं, अल्लाह हमारा महबूब होता है। हम रोज़ा रखते हैं, हम मुहिब होते हैं, अल्लाह महबूब होता है। लेकिन जब कोई बंदा सुन्नतों की इत्तिबा करता है तो वो महबूब बन जाता है, अल्लाह मुहिब बन जाता है, अल्लाह मुहिब बन जाता है। और जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो ईमान की दौलत से उसको महरूम नहीं करता। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह,
फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। महबूब आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। जब कोई बंदा रसूलुल्लाह के इत्तिबा करता है तो अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, और जब वो अल्लाह का महबूब बन जाता है तो उसका ईमान महफूज हो जाता है। बल्कि हम जो सुन्नतों की इत्तिबा करते हैं, ये ज़ाहिरी सुन्नतों की पैरवी, ये बंदे को ईमान की दौलत से मालामाल कर देती है। सीना ईमान से खाली होता है, ईमान की दौलत बंदे को नसीब हो जाती है। आज आमतौर पे लोग यही बात करते हैं कि बस मोहब्बत तो दिल में होनी चाहिए, ये ज़ाहिरी नक़ाली का क्या फ़ायदा, ये ज़ाहिरी मुताबाअत का क्या फ़ायदा, ये ज़ाहिरी इत्तिबा, ये ज़ाहिरी नक़ाली भी बंदे पर खैर के दरवाजे खोल देती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा हुनैन से वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो एक बस्ती के करीब पड़ाव डाला। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के लिए आज़ान देने लगे। बस्ती के बच्चे करीब खेल रहे थे। जब बच्चों ने आज़ान के कलिमात सुने तो उन्होंने भी हज़रत बिलाल की आज़ान की नकल उतारनी शुरू कर दी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो बच्चों को बुलाया। बच्चे डर के मारे भाग गए। सिर्फ एक बच्चा अबू महजूरा नाम का, वो बड़ा था, उसने भागना मुनासिब नहीं समझा, वहीं पे खड़ा रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, करीब आया, पूछा क्या कर रहे थे। वो गैर मुस्लिमों के बच्चे थे। पूछा क्या कर रहे थे। बच्चे ने कहा कि जैसे कलिमात वो पढ़ रहा था वैसे ही कलिमात मैं पढ़ रहा था। अच्छा, वो कैसे कलिमात पढ़ रहा था। अब उस बच्चे ने कलिमात पढ़ने शुरू कर दिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब ये कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब जाएं, अपना काम करें। उसने कहा अब मैं कहाँ जा सकता हूँ, अब तो मैंने जिनका कलमा पढ़ा है उन्हीं के साथ जाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने साथ लिया, मक्का मुकर्रमा ले आए। चूँकि मक्का मुकर्रमा पहले से फतह हो चुका था, मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम में एक मुअज्जिन की ज़रूरत थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इंतखाब हज़रत अबू महजूरा पे पड़ गई। वो अबू महजूरा जिन्होंने हज़रत बिलाल की आज़ान की नकल उतारी थी, मुसलसल 60 साल तक मस्जिद हराम में आज़ानें देते रहे। अल्लाह ताला नकल को असल में तब्दील कर लेते हैं। अगर हम ज़ाहिर में इताअत करेंगे, इत्तिबा करेंगे, नक़ाली करेंगे, ईमान की दौलत हमें नसीब हो जाएगी। तो जिनके पास ईमान की दौलत होती है उनका ईमान महफूज हो जाता है। तो ईमान की हिफाजत का ये अगला तरीका हो गया। और ईमान की हिफाजत के लिए अगला काम कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें। अपने दिल से, दिल की गहराइयों से इस बात पे हम खुश हों कि अल्लाह तूने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है। कई मर्तबा ऐसा होता है हमारे नौजवान भाई जब बाहर की दुनिया में जाते हैं तो अपने आप को मुसलमान कहते हुए शर्मा रहे होते हैं, जैसे कि हम कोई जुर्म करते हैं या हमने कोई जुर्म किया हुआ है। मुसलमान का लफ्ज़ जब बोलते हैं तो वो शर्माते हैं, आर महसूस करते हैं, झिझकते हैं, गोया कि वो ईमान और इस्लाम की दौलत पे खुश नहीं है। हमें चाहिए कि हम फ़ख्रियत तौर पे इस बात का इकरार करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान हैं। जिनके पास खोटा सौदा हो वही शर्माता है, जिसके पास सौदा ही खरा है वो क्यों शर्माए। हमें कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई झिझकने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्र की बदौलत फिर ईमान की दौलत बंदे का ईमान महफूज हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। तो शुक्र की अदायगी के नतीजे में बंदे का ईमान महफूज